افغانستان سرحد پار دہشت گردی ختم کرے، دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، DGISPR نے واضح کر دیا، کہا پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی کوئی اجازت نہیں دی، ہم چاہتے ہیں بہتر ہے افغان طالبان پرامن مذاکرات سے مسئلہ حل کریں، ورنہ ہم دوسرے طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ پاکستان میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی میں افغان فوج کے سپاہی بھی ملوث ہیں، 3-4 ماہ کی جھڑپوں میں 112 خوارجی سمیت افغان فوج کے 206 سپاہی بھی مارے گئے، رواں سال 1667 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، اگر دوبارہ حملہ کیا تو پہلے سے زیادہ شدید جواب ملے گا۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، سیاست سے دور رکھا جائے، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ DGISPR کی پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا سہیل آفریدی KP کے وزرائے اعلیٰ ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ KP میں گورنر راج کی خبریں تخلیقیاتی ہیں، اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو حکومت کا دائرہ اختیار ہے۔ KPK میں دہشت گردی کا نارکو اکانومی سے تعلق ہے، KP میں 12,000 ایکڑ پر پوست کاشت کی گئی ہے، مقامی سیاستدان اور لوگ بھی پوست کی کاشت میں ملوث ہیں، تیرا میں آپریشن کی وجہ سے افیون کی فصل تباہ کی گئی۔ وفاق کی 27ویں ترمیم کی تیاری، اسلام آباد سیاسی اور آئینی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، وزیر اعظم نے پارٹی قائد نواز شریف سے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی، آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے قومی قیادت سے رابطے اور ملاقاتوں کا آغاز، ذرائع کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کے بعض حساس اختیارات میں رد و بدل کی شقوں کو بھی شامل کرنے کا امکان، نئی ترمیم میں وفاق صوبوں میں NFC اور دیگر طے شدہ اختیارات میں بھی تبدیلی کا امکان، 27ویں ترمیم پر PTI اور مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست، بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں نون لیگ کے وفد نے صدر اور مجھ سے ملاقات کی، 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی گئی، ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور ججز کے تبادلے شامل ہیں، NFC میں صوبائی حصے کا تحفظ ختم کرنا بھی ترمیم میں شامل ہے، تجاویز میں آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی، وفاق میں واپسی کی ترمیم بھی شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے لکھا کہ صدر کی قطر سے واپسی پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو ہوگا، جس میں پارٹی پالیسی طے کی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لٹک گئی، آزاد کشمیر میں ممکنہ حکومتی تبدیلی 27ویں آئینی ترمیم کے باعث مزید تاخیر کا شکار، عدم اعتماد میں تاخیر پر اتحادیوں میں مایوسی کی فضا، ارکان اسمبلی حلقوں کو لوٹ گئے۔ اسرائیل بار بار غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، غزہ پر اسرائیل کے حملے فوری بند ہونے چاہیے، ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کی گفتگو، استنبول میں عرب اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، قطر، پاکستان، سعودی عربیہ اور جارڈن کے وزراء خارجہ شریک، اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی، ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ اجلاس میں غزہ میں بین الاقوامی طاقت پر بات کی گئی، اسرائیل غزہ میں امداد کو داخل ہونے سے بھی روک رہا ہے، جبکہ حماس غزہ کا کنٹرول حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے ملاقات، دونوں وزراء خارجہ کا پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ حماس کی جانب سے حوالے کی گئی تینوں لاشیں اسرائیلی فوجیوں کی نکلی، اسرائیلی حکام کی تصدیق، امریکی نژاد کیپٹن کی باقیات بھی شامل، باقیات یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری، معاہدے کے تحت اسرائیل نے بھی 45 فلسطینی قیدیوں کی باقیات غزہ میں حکام کے حوالے کر دیں، بیشتر پر شدید تشدد کے نشانات، اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی 145ویں خلاف ورزیاں، غزہ میں حملے اور فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، صہیونی آبادکاروں نے بھی مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی حمایت ترک کرنے تک امریکہ سے مذاکرات ممکن نہیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے صاف صاف کہہ دیا، بولے امریکہ خطے میں مداخلت اور اڈے ختم کرے تو تعاون کا سوچیں گے، امریکہ سے ایران کے اختلافات سیاسی نہیں نظریاتی اور اصولی ہیں، تکبر پسند فطرت فرمانبرداری کے سوا کچھ قبول نہیں کرتی، امریکہ وسائل و قدرتی ذخائر پر قبضہ کر کے اقوام کی تقدیر کا مالک بننے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ پاکستان، چین، روس اور شمالی کوریا
खुफिया एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, पेंटागन को फौरी तौर पर एटमी तजुर्बा दोबारा शुरू करने की हिदायत दी। हम वाहिद मुल्क हैं जो नहीं करते और मैं ये नहीं चाहता कि हम वाहिद मुल्क रहें जो तजुर्बात ना करें। हम सब कुछ अवाम के सामने रखते हैं। अगर दूसरे ममालिक तजुर्बात कर रहे हैं तो हमें भी करने होंगे। तजुर्बात करेंगे, धमाके नहीं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स के मुआशी इस्तेहकाम एंड द जियोपॉलिटिकल टेलमेंट। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदा भी माशी इस्तेहकाम की तौसीक है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। हमारा हदफ पायदार माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पेंशन इस्लाहात राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि टैक्स वसूली के लिए FBR को हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। एक साल में टैक्स टू DDP में 1.5% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी कहते हैं कि गुज़श्ता 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी हुई। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। तवानाई के शोबे में वो इस्लाहात की गई हैं जो कभी नहीं हुई। IBP से मुतालिक टास्क फोर्स ने मौसर काम किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि निजकारी के हवाले से हुकूमत अपने अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। PIA की निजकारी का अमल बहुत अहम है। शिजा फातिमा का कहना था कि डिजिटाइजेशन नेशन पाकिस्तान के रोड मैप पर अमल पैरा है। कौमी सतह पर डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं जिसमें FBR समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी एक नए मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हमारे सिफारतकार जो काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने का झूठा इल्जाम लगाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। जंग मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। माल का हक में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने फतह हासिल की। उम्मीद है ग्रीन लाइन फेज़ 2 पर काम जल्द शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध ने ताउन का यकीन दिलाया है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा, कराची ग्रीन लाइन मनसूबे का फेज़ 2 5.5 अरब रुपए का मनसूबा है जो 29 अरब रुपए के फेज़ 1 मनसूबे में इजाफा करेगा। वफाकी हुकूमत ने हमेशा कराची को तरजीह दी है और अपनी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बैरिस्टर असद उल्ला ने दलाइल दिए। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया। मरियम नवाज समेत दीगर फरीक़ैन के वकील के दलाइल में वज़न है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत में मुंतकिल। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बेटी और बुशरा बीबी के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आजम खान ऑडियो लीक्स केस की समाअत करेंगे। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। लाहौर, गुजरावाला, शेखपुरा और कसूर में फ़िज़ाई मेयार की शरह 500 तक पहुँच गई। फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत की मरबूत पॉलिसी और रोज़ाना मॉनिटरिंग से आलूदगी में कमी आ रही है। लाहौर समेत तमाम अजला में स्मॉग के खात्मे तक कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रखी जाएँ। कराची में ई चलान निज़ाम का निफाज। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 2790 शहरियों के चलान। सबसे ज़्यादा 1607 चलान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट पर 743 चलान किए गए। लाल सिग्नल जंप करने पर 150, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर 73 चलान किए गए।
कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में पार्किंग से मना करने पर सुपर स्टोर के मुलाजिम पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। एहलकार सुपर मार्केट में खरीदारी के लिए आया था। मुलाजिम से पुलिस एहलकार की तल्ख कलामी हुई। एहलकार ने अपने दीगर साथियों को भी बुला लिया। मुलाजिम को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। महकमा सेहत से इनकी चोरी पकड़ी गई। कराची में डेंगू के केसेस को छुपाने की नाकाम कोशिश। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कराची भर से डेंगू के सिर्फ 16 नए मरीज दाखिल हुए, जबकि शहर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता रोज़ 34 मरीज दाखिल हुए। सिविल अस्पताल में 22, जिला अस्पताल में 12 नए मरीज दाखिल हुए। AMS सिविल अस्पताल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 219 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए, जिनमें 39 अफराद में डेंगू मस्बत आया। कराची मेरा शहर है और उसी ने मुझे पहचान दी। अदाकारा सबा कमर के कराची से मुतालिक बयान पर अदाकार फैसल कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा, बहुत से लोग शहर की नाक़िस सूरत हाल की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं। कराची की हालत वाकई अफसोसनाक है, जो पंजाब या दीगर इलाकों में देखने को नहीं मिलती। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि कराची बानी पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है, इसलिए उसकी एक अलग पहचान और अहमियत है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कहते हैं, मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मईशत और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के लिए PIMEC एक बहुत बड़ा मौका है, जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। हुकूमत सिंध समंदरी तजारत के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। मग़रबी सूडान के इलाके दाफुर में सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है। अल्फाशर और अतराफ के इलाके से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। अरब अमारात की सरपरस्ती में फ़ाल मलेशिया। RSF की नई पेशकदमी की तैयारी। हज़ारों अफराद को यरग़माल बना लिया। नकल मकानी के तमाम ज़राए ज़ब्त। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर RSF की कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहीं तो दाफुर और आसपास के इलाकों में इंसानी बहरान मज़ीद गहरा हो सकता है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहिब में शुरू। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यात्री और हिंदू यात्री ननकाना साहिब पहुंचना शुरू। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल ननकाना साहिब पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ODI सीरीज इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम ने 2 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला ODI कल खेला जाएगा।